Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 14 SFM. Topic is security analysis and portfolio management. Today we will solve illustration number 11. Okay, so basically from the following information, ascertain the market price of the risk of portfolio. Okay, so what is market price of risk of portfolio? We will see. Data is given, that is market return, that is RM is given, and here standard deviation of the market, यानी कि standard deviation of market given. After that, risk of the government bonds, that is RF is given, and standard deviation of the portfolio, that is standard deviations of the particular portfolio are given. Okay, so first of all we will see the formula, that is मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क. वो क्या होता है? ओके, सो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क यानी कि उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं. ये जो साइन रहता है उसको लैम्डा बोलते हैं. सो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओके, दैट इज आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. ऐसे फाइंड आउट किया तो हम लोग को क्या मिलता है? लैम्डा मिलता है. ओके, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है. ओके, लेट्स सी. Also determine the expected return from each of the above cases. So basically expected return भी find out करना है, और starting में ही बोला है कि market price of risk find out करना है. See, market price of risk का मतलब होता है lambda. So lambda का formula है RM minus RF divided by standard deviation of a market. Okay, so वो find out करने के बाद हम लोग को ascertain the expected return. Okay, normally expected return का हम लोग का formula होता है CAPM वाला. Okay, नॉर्मली. सो उसमें क्या रहता है? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग आर एफ. ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग आर एम एंड आर एफ. ओके, बट वी डोंट हैव एनी बीटा. ओके, सो अभी हम लोग सी ए पी एम तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क यानी कि लैम्डा यूज़ करना है. सो लैम्डा के लिए अपने पास एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला होता है. ओके, कैपिटल मार्केट लाइन उसको बोला जाता है. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस लैम्डा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. ओके, ये अपना फॉर्मूला होता है अंडर कैपिटल मार्केट लाइन, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क लैम्डा. जब कैलकुलेट करना होता है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the data which is given in the question I had just copied it out. okay, जो डेटा दिया है वो जैसा का वैसा ही मैंने कॉपी किया है. अभी मेरे को क्या बोला है? स्टार्टिंग में ही मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क फाइंड आउट करो. ओके, सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, यानी कि लैम्डा फाइंड आउट करना है. ओके, सो लैम्डा हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट में फाइंड आउट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा, दैट इज आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ market. okay, so we'll check the data from here only. so RM is 18 minus my RF are also different in each case. okay, these are the cases, right? These are the cases divided by standard deviation of market, that is 6. so here see, 18 minus 6 divided by 6, it comes to 2. okay, so my first lambda is 2. after that मार्केट रिटर्न यानी कि आर एम 20 माइनस आर एफ इज 7 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, इट इज़ 8. सो लेट्स चेक माई लैम्डा. लैम्डा कितना आता है? चेक करते हैं. 20 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 1.625. 1.625. ओके, नाउ लास्ट वन. RM is 22, RF is 8 divided by standard deviation of market, that is 9. so let's check the market price of risk, that is 22 minus 8 divided by 9, it comes to 1 point. अभी राउंड ऑफ करना है तो 2 डेसिमल 3 डेसिमल कैसे भी कर सकते हैं. अभी इधर 3 डेसिमल लिए तो इधर भी हम लोग 3 ही लेंगे. 5 5 और 6. ओके, राउंड ऑफ. So here we have calculated the first part, that is market price of risk. Now we will go for the second part, that is expected return. okay, in case of a capital market line using this lambda. okay, so first case, in case of first this case, RF is 6. okay, plus lambda we got 2 multiplied by standard deviation of portfolio. okay, okay, just we will fill this. okay, इधर 2 आया अपना आंसर 1.625 और हियर 1.556. ओके, फर्स्ट आंसर आया, मैंने जस्ट फिल करके रखा. नाउ स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज 8. ओके, सो हम लोग को इधर आंसर मिलेगा
okay, expected return. So 8 multiplied by 2 plus 6, okay, 22. So answer is 22%. Now next, RF in case of second case, that is 7 plus lambda we got 1.625, and standard deviation of portfolio it is 4. Okay, everything is given in the question, just check it out. After that multiplication, multiplied by 4 plus 7, it comes to 13.50. Last one, RF is 8 plus lambda we got 1.556, standard deviation of portfolio that is 12, and we'll get the percentage over here. 1.556 multiplied by 12 plus 8, it comes to 26 point, 2 decimal तक round off करेंगे, that is 67, 26.67. okay, सो विल चेक द आंसर. ओके, इधर रैंकिंग वगैरह कुछ भी करने के लिए नहीं बोला है. ओके, सो 2 1.625 एंड 1.556. आफ्टर दैट 22%, 13.50% एंड 26.67%. सो हियर वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर्स. Now we will go for illustration number 12. Okay, X company limited invested on 1st April 2010 in certain equity shares as below. So एक कंपनी है X कंपनी लिमिटेड, उसने 2 कंपनी में इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर्स में. ओके, so this is the first company in which the company has invested, that is D Limited, and second one is G Limited. Number of shares that is 1,500 and face value is rupees 10 each, and here rupees 1 each. Okay, so cost is 20,000 and 15,000. okay, from where we got this cost? okay, मार्केट प्राइस के हिसाब से कॉस्ट कितना है वो बताया. ओके, अगर आप लोग इधर से फाइंड आउट करेंगे तो वो नहीं आएगा. ओके, सो बेसिकली face value is 10 but market price is different, right? So according to the market price this cost are given. Okay, next, in the September 2010 10% dividend was paid out by the D Limited. Okay, so इधर हम लोग को फर्स्ट ईयर में 10% डिविडेंड मिला. ओके, इन अक्टूबर 2010 30% डिविडेंड इज पेड आउट बाय द जी लिमिटेड. ये जी लिमिटेड ने डायरेक्ट 30% डिविडेंड दे दिया. ओके, on 31st March 2011. okay, investment was made in 10. okay, 1st April 2010. After completing that financial year, that is 31st March 2011, the market quotations यानी कि market price shows the value 22 and 29. okay, per share of D Limited and G Limited respectively. okay, this is the entire data for the one financial year. okay, उसी financial year में हम लोग को डी लिमिटेड ने 10% डिविडेंड दिया और जी लिमिटेड ने 30% डिविडेंड दिया. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज आफ्टर on 1st April 2011. okay, so this data is for 2010 and 11 and this data is for 2011 and 12. okay, the investment advisor indicated, okay, A, that is dividend from the D Limited and G Limited for the year ended 31st March 2012 are likely to be 20% and 35%. okay, so this is the estimated this is the estimate that here in the second year, that is 2011 and 12, the dividend percentage would be 20% and 35%. okay, and second estimation, that is the probability of market quotation on 31st March 2012 are as given below. okay, so market price, see, ये जो फर्स्ट ईयर है 2010 एंड 11, इसमें कंफर्म डेटा दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज अ कंफर्म डेटा अबाउट डिविडेंड परसेंटेज एंड मार्केट प्राइस. ओके, बट this is the second year, that is 2011 and 12. here everything is estimated because that is going to happen. it is not means that period is not over, so it will going to happen, so that's why it is estimation. okay, so estimations about dividend percentage are given and market price estimation is also given according to the company, that is D and G. okay, I hope आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा. you are required to calculate average return from the portfolio for the year 31st March 2011 means the year which is already over. okay, so जो first year है 2010 and 11 जो real year है वो already हो चुका है.
उसका हम लोग को एवरेज रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए बोला है. दैट इज ईजी एंड यू कैन कैलकुलेट ईजिली. हियर कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड. वाई दे आर यूजिंग एक्सपेक्टेड? बिकॉज ईयर 2011 एंड 12 इट इज़ नॉट येट ओवर, इट विल ओवर. दैट्स वाई एक्सपेक्टेड बोला है, क्योंकि उसमें सब डेटा एस्टिमेटेड है. ओके, so expected average return for the portfolio 2011 and 12 का. okay, so this is the real return and this is the expected return. okay, advise the company X from the comparative risk of the two investment by calculating the standard deviation in each case. so basically हम लोग को पहले तो real return यानी कि जो एक्चुअल वाला रिटर्न है 2010 और 11 ये जो ईयर है फर्स्ट ईयर उसका वो फाइंड आउट करना है. उसके बाद एक्सपेक्टेड from the by using the estimated data. okay, for the year 2011 and 12. उसके बाद again standard deviation find out करना है in each case. okay, so let's start. first of all calculate the return or okay calculation of a return percentage of portfolio. पहले तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना है. ओके उसमें क्या है, रिटर्न परसेंटेज हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली आप लोग को अगर याद है तो म्यूचुअल फंड में हम लोग करते थे रिटर्न परसेंटेज, वो टाइप का कैलकुलेशन इधर आएगा. बिकॉज टू मार्केट प्राइजेज आर गिवन, दैट इज क्लोजिंग वन एंड ओपनिंग वन. आफ्टर दैट dividend is given and we have to calculate the return, so we will use that knowledge over here. okay, so formula is same as like a mutual fund topic. NAV1 that is closing NAV minus NAV0 that is opening NAV plus dividend then multiplied by 100 divided by NAV0. okay, so NAV1 यानी कि क्लोजिंग वाला. ओके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. सी दैट इज़ 22 इन केस ऑफ कंपनी डी. कंपनी डी का है 22 और कंपनी जी का है 29. तो वही हम लोग को यूज़ करना है इधर. ओके सो हियर 22 और इसका है 29. आप लोग को समझ में आ रहा होगा. ओके NAV0 जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है उससे फाइंड आउट करना है. सी NAV0 यानी कि स्टार्टिंग वाला. सो टोटल amount is 20,000 divided by number of shares that is 1,000. so opening NAV that is NAV0 is rupees 20. okay, in case of D limited and in case of G limited 15,000 divided by number of shares that is 500. okay, that is 30. so here it is 20, here it is 30. NAV0. okay, वही हम लोग को यूज़ करना है. सो 20 और 30. ओके आप लोग को दोनों साथ में नहीं जम रहा है तो एक एक करो. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड. अगेन हियर दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ आई वांट डिविडेंड. सो डिविडेंड परसेंटेज चेक करेंगे. सी इन केस ऑफ डी लिमिटेड डिविडेंड परसेंटेज आर 10%. डी लिमिटेड का 10% था. डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही दिया जाता है. सो फेस वैल्यू चेक करेंगे. 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इज 10. टोटल अमाउंट दैट इज फेस वैल्यू अपना है 10,000. इसके ऊपर हम लोग को मिलेगा 10%, दैट इज ₹1000. ओके ₹1000 हम लोग को पर शेयर वैल्यू चाहिए बिकॉज दिस 22 दिस ₹20 एवरीथिंग इज पर शेयर वैल्यू. सो दैट्स वाई ये ₹1000 तो मिलेगा, लेकिन कितने शेयर के ऊपर मिलेगा, दैट इज 1000 शेयर के ऊपर. सो आंसर इज ₹1. ओके सो आंसर इज ₹1. तो अपने को डिविडेंड मिलेगा 1 multiplied by 100 divided by NAV0 that is 20. okay let's check the percentage. हम लोग को इधर परसेंटेज मिलेगा. ओके सो 22 minus 20 plus 1 multiplied by 100 divided by 20 it comes to 15%. it comes to 15%. डिविडेंड वाला पार्ट अगर नहीं समझाए तो अगेन देख लो दूसरे कंपनी का. सी डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन ऑन द फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू चेक करते हैं. 500 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो 500 है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इज 1. सो टोटल अमाउंट दैट इज फेस वैल्यू इज 500. ओके इसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाइड बाय 30%. सो वी आर गेटिंग डिविडेंड ऑफ ₹150. बट आई डोंट वॉन्ट टोटल डिविडेंड, आई वॉन्ट पर यूनिट डिविडेंड यानी कि पर शेयर डिविडेंड. सो डिवाइडेड बाय शेयर्स कितना है, शेयर्स डिवाइडेड बाय 500. सो पर शेयर आई एम गेटिंग 0.3 रुपीज 0.3 डिविडेंड. ओके सो हियर आई विल राइट 0.3 multiplied by 100 divided by NAV0 that is 30. okay now 29 minus 30 plus 0.3 multiplied by 100
divided by 30. So we are getting negative answer, that is minus 2.33. Okay, so we are getting माइनस 2.33, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, रिटर्न का परसेंटेज है. ओके, सो माइनस 2.33%. ओके, बट इन द क्वेश्चन हम लोग को सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करो ऐसा नहीं बोला है. हम लोग को क्या बोला है, एवरेज फाइंड आउट करो, यानी कि पोर्टफोलियो का. ओके, क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. ओके, these are two companies, okay, in which we have invested, but we don't want separately, we want average. So हम लोग ने इधर क्या किया, कंपनी का नाम लिखा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में दिया है, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है टोटल, दैट इज 20,000 एंड 15,000, टोटल इज 35. ओके, अभी वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज पोर्टफोलियो का कर रहे हैं. ओके, वेट इज वेरी इजी. सो फर्स्ट अमाउंट 20,000 डिवाइडेड बाय उनका टोटल 35,000. सो वेट इज 2 डेसिमल तक ले लो, that is 0.57. After that 15,000 divided by 35,000, it comes to 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ, यानी कि 8 की वजह से 2 का 3 हो जाएगा. सो 0.43. ओके, 0.43. वेट का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, कितने भी सिक्योरिटीज रहने दो, वेट फाइंड आउट कर रहे तो उसका टोटल 1 ही आना चाहिए. सो 0.57 प्लस 0.43, answer is getting 1, we are getting 1, so it is correct. Now return we have calculated, that is 15% and minus 2.33%. okay, now return multiplied by weight. So return is 15 multiplied by weight is 0.57, so we are getting 8.55. okay, percent. After that 2.33, which is in minus, multiplied by 0.43 is my weight, that security is D weight. So minus 1.00%. So 1.00 यानी कि 1 ही. ओके, सो टोटल लेते हैं 8.55 प्लस 1 विच इज इन माइनस. सो फाइनल आंसर इज 7.55%. 7.55%. okay, 7.55%. let's take the answer of this first question. First question था average return of the portfolio for the year 31st March 2011. We are using that real data only. okay, estimated data अभी तक use ही नहीं किया है. See, answer is 7.55%. okay, now we will use that estimated data to calculate the expected average return. okay, let's start. Calculate the NAV. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक NAV फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी NAVs दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी these are the market prices, that is closing NAV which is given in the question, but these NAVs are given along with the probabilities. इधर कैसे था, सिर्फ एक ही था, मतलब 22, 29, that was confirm, but here nothing is confirm. so that's why हम लोग को पहले एक अमाउंट यानी कि एक वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा as like a NAV1. so let's start. Just understand the difference between these two questions. So first of all, market price. okay, in case of this is in case of D limited and this is in case of G limited. ये पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी है. ओके, सो इनका जो भी प्रोबेबिलिटीज़ है और मार्केट प्राइस है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, वही मैं कॉपी कर रही हूँ. ओके ओके, सो हियर नाउ मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, मतलब 22 प्राइस होने का प्रोबेबिलिटी है 0.2. सो कितना आया 4.4. 25 multiplied by 0.5, that is 12.5. 28 multiplied by 0.3, that is 8.4. okay, so total लेना है 4.4 plus 12.5 plus 8.4, total is 25.3. ये मेरा मार्केट प्राइस है एस्टिमेटेड, मतलब एक ऑन एन एवरेज मुझे ऐसे लगता है कि मेरा NAV1 इन केस ऑफ ईयर 2011 एंड 12, मतलब क्लोजिंग NAV रहेगा 25.3. ओके, वैसे ही मेरे को इधर मल्टीप्लिकेशन करके टोटल लेना है. ओके, सो 29 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, दैट इज 5.8. then 31 multiplied by 0.5, that is 15.5. then 33 multiplied by 0.3, that is 9.9. okay, so 5.8 plus 15.5 plus 9.9, it comes to 31.2. okay, 31.2. so I got NAV1 in case of D limited and in case of G limited. okay,
नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द रिटर्न परसेंटेज। जैसे इधर मैंने सेपरेटली कैलकुलेट किया वैसे ही मुझे उधर भी करना है, लेकिन इधर क्या था, NAV1 क्वेश्चन में दिया था लेकिन उधर नहीं दिया है, उधर प्रोबेबिलिटी के साथ दिया था, इसके लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ा। ओके, सो इन केस ऑफ फर्स्ट पार्ट NAV1 was directly given in the question, so there was no problem, but in case of part B NAV1 was not directly given in the question, that's why we are required to calculate that. So we have calculated. Now we will use the formula and we will calculate the answer. NAV1 we got 25.3, okay, minus NAV0. See 31 मार्च 2011 को NAV कितना था 22, ओके। अभी ये इधर ये ईयर ख़त्म हो गया, मतलब 1 अप्रैल 2011 को वही रहेगा ना, मतलब लास्ट टाइम का क्लोजिंग ये टाइम का ओपनिंग रहता है। ओके, सो दिस वाज द क्लोजिंग NAV फॉर द फर्स्ट ईयर एंड इट विल बी ऑब्वियसली ओपनिंग NAV ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो 22 विल बी नाउ माई opening NAV because it was closing NAV in the first year at the time of end of the first year. Now it will be a opening NAV in case of opening मतलब starting of second year, so it will be 22 प्लस अभी डिविडेंड का परसेंटेज हम लोग को एस्टिमेट करके दिया है 20% और 35%, राइट। सो वैसे ही कैलकुलेट करना है। 1000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 वाज द फेस वैल्यू, अमाउंट इज 10,000, उसके ऊपर अपने को 20% मिलेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 1000, सो वी आर गेटिंग 2। सो डिविडेंड इज 2 multiplied by 100 divided by NAV0. NAV0 is 22. Okay, so let's find out the percentage, that is return percentage. After that, here price is 31.2 minus here closing NAV will be opening NAV. So closing था 29, वही इधर opening बनेगा, that is 29 प्लस अभी डिविडेंड का परसेंटेज हम लोग को दिया है 35%। ओके, ये 500 वाले के लिए। सो 500 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1, उसके ऊपर 35%, सो अमाउंट इज 175 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सो वी आर गेटिंग पर शेयर डिविडेंड दैट इज 0.35। सो 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय NAV0. NAV0 is 29. Okay, so let's find out the percentage over here. 25.3 minus 22 plus 2 multiplied by 100 divided by 22. We are getting 24. अभी राउंड ऑफ तो वैसे ही होएगा 24.09, 24.09। ओके, 31.2 माइनस 29 plus 0.35 multiplied by 100 divided by 29, it comes to 8.79. okay, 8.79. okay, 8.79, right? Now we will see, we have calculated up to this. now हम लोग को ये स्टेप करना है, एवरेज रिटर्न वाला स्टेप करना है। ओके, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, वेट चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, वेट चाहिए। अभी कंपनी है डी लिमिटेड और जी लिमिटेड। ओके, अभी अमाउंट इन्वेस्टेड, ओके, हियर अमाउंट इन्वेस्टेड वाज रेडीमेड गिवन इन द क्वेश्चन, बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड। ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड जो रहता है वो ओपनिंग NAV के हिसाब से होता है। ओके, हम लोग ने स्टार्टिंग में ओपनिंग NAV फाइंड आउट किया था 20 और 30 अमाउंट इन्वेस्टेड का यूज़ करके। ओके, वैसे ही अभी हम लोग जो ओपनिंग NAV है उसका यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। ओके, इन केस ऑफ डी लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 1000। ओके, इन केस ऑफ दिस सेकेंड ईयर NAV0 इट इज़ 22। ओके, अभी हम लोग ने यूज़ किया है, सो अमाउंट इन्वेस्टेड इज़ 22,000। ओके, ये तो बेसिक चीज़ें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। 500 मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग NAV इन केस ऑफ अ जी लिमिटेड दैट इज 29। ओके, अभी हम लोग ने वो भी यूज़ किया है। ओके, लास्ट टाइम का क्लोजिंग ये टाइम का ओपनिंग रहता है, सो वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 29। अमाउंट इज 14,500। ओके, जस्ट टेक अ टोटल 22,000 प्लस 14,500 दैट इज 36,000। ओके, now we will get the weight 22,000 divided by 36,500, it comes to 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करो 60, okay, 0.60, and here 14,500 divided by 36,500 it comes to राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक, यानी कि 40 तक। ये 7 की वजह से 39 का 40 हो जाएगा, सो टोटल 0.6 प्लस 0.4 इट कम्स टू 1। ओके,
रिटर्न का परसेंटेज जो अभी अभी हम लोग ने रिटर्न्स फाइंड आउट किए हैं ना, वो लिखना है 24.09 और 8.79। ओके, अभी क्या रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय वेट करना है, 24.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, इट कम्स टू 14.45। ओके, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ किए तो भी चलेगा। आफ्टर दैट 8.79 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, इट कम्स टू 3. ये 6 की वजह से 1 का 2 हो जाएगा। ओके, let's take the total, so we'll get the average return, so 14.5 plus 3.52, okay, 17.97% आना चाहिए, 17.97% आना चाहिए। ओके, इसे बोलेंगे हम लोग एवरेज रिटर्न। ओके, एवरेज रिटर्न। बट सी इन द टेक्स्ट बुक आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दिस 13.8 बिकॉज वेट, अभी वेट के हिसाब से ही हम लोग रिटर्न फाइंड आउट करते हैं, राइट? मतलब रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय वेट करते हैं। सो वेट इन लोग का देखो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 22, इट इज़ 22,000। ओके, अपना भी तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट उतना ही आया है। उसके बाद 500 मल्टीप्लाइड बाय 29, वैसे ही हम लोग ने किया, सो 14,500। सो टोटली और वेट फाइंड आउट किया। अभी इनका वेट ये किधर से आया मेरे को नहीं पता। ओके, ये वेट्स लिखा है, वो किधर से लाया मेरे को नहीं पता। ये वेट मतलब अलग है, कुछ अलग ही है ये वेट। अलग वेट आने की वजह से एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कुछ अलग ही आया है। ओके, आई डोंट नो, इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट। सो हम लोग अभी क्या कंसिडर करेंगे, जो अपना कैलकुलेशन है वही लेके हम लोग आगे चलेंगे। सो ये आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग ने ये कैलकुलेशन तो वही की है जो हम लोग ने किया है, लेकिन ये वेट किधर से लाए पता नहीं है। सो वेट अलग है तो ऑब्वियसली अपना एवरेज रिटर्न अलग ही आएगा। ओके, सो देखते हैं, किसी को अगर पता रहेगा तो हम लोग को भी समझ में आ जाएगा, नहीं आया है तो ये इसी को फाइनल कर देंगे 17.97, क्योंकि जो कैलकुलेशन नॉर्मली करते हैं वैसे ही किया हम लोग ने। अभी थर्ड पार्ट हम लोग को पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो इन ईच केस, यानी कि कंपनी डी और जी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो इधर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न देन प्रोबेबिलिटी देन रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, वो सारे स्टेप्स हम लोग को यूज करके फाइंड आउट करना है। सो इधर रिटर्न हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, अभी रिटर्न फाइंड आउट करते वक्त हम लोग को रिटर्न का परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करना है, जस्ट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सी रिटर्न में क्या क्या आता है, अपना कैपिटल एप्रिसिएशन आता है और डिविडेंड आता है। सो डिविडेंड को ध्यान में रखो, इसका डी लिमिटेड का डिविडेंड है 2 और जी लिमिटेड का है 0.35। सो रिटर्न का मतलब है एप्रिसिएशन, मतलब जो अपना जो प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है वो प्लस डिविडेंड। ओके, अभी देखो अपना ओपनिंग प्राइस कितना था, सेकेंड ईयर की बात चल रही है, सब कुछ सेकेंड ईयर का चल रहा है। बी और सी केस जो है वो सेकेंड ईयर के बारे में ही बोल रहा है। ओके, क्योंकि सी केस में भी हम लोग को सेकेंड ईयर का ही फाइंड आउट करना है। सी ये जो सेकेंड ईयर है उसमें जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है मतलब मार्केट प्राइस है वो क्या है 22, और ओपनिंग तो उसका फिक्स ही है, लास्ट टाइम का क्लोजिंग ए टाइम का ओपनिंग है। सो 22 is my closing, 22 is my opening, so I am not getting anything as a appreciation value. So appreciation value है अपना 0। ओके, appreciation value है 0, डिविडेंड उसका था 2, so अपने को रिटर्न कितना मिला 2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सी, अभी ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का बात हो गया। अगर प्राइस इतना होगा तो मेरे पास अप्रिसिएशन नहीं रहेगा। ओके, इफ द मार्केट प्राइस विल बी 22 देन आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन बिकॉज क्लोजिंग इज 22, ओपनिंग इज 22, सो 0, आई विल गेट द डिविडेंड दैट इज 2। ओके, आफ्टर दैट इफ द प्राइस विल बी 25 देन व्हाट विल बी द अप्रिसिएशन। सी, क्लोजिंग प्राइस इज 25, ओपनिंग प्राइस इज 22, so I am getting appreciation of 3, so here it will be 3 plus my dividend will be fixed, that is 2, so total return is 5. After that in case of last probability, that is last जो भी हम लोग को लग रहा है मतलब जो प्राइस है वो 28, अगर प्राइस 28 हो गया तो 28 माइनस ओपनिंग वाला 22, दैट इज 6, और अपना डिविडेंड तो फिक्स ही है, दैट इज 2, so here 6 plus 2 it will be 8. now probability which is given in the question 0.2, 0.5, 0.3, तो इतना 2 रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, मतलब मल्टीप्लिकेशन रिटर्न और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 0.4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 that is 2.5, after that 8 multiplied by 0.3 that is 2.4,
Now just take a total, so we'll get the expected return 0.4 plus 2.5 plus 2.4 5.3. Okay, don't write percentage over here because ये जो है वो परसेंट नहीं है, ये तो हम लोग ने रुपीज़ पर यूनिट का रिटर्न फाइंड आउट किया है, सो डोंट राइट परसेंटेज ओवर हियर. ओके, अभी डेविएशन करना है. डेविएशन कैसे करते हैं हम लोग, जो रिटर्न मिला है उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करते हैं. सो मेरे को रिटर्न कितना मिला था 2, उसमें से एक्सपेक्टेड कितना है 5.3. सो 2 माइनस 5.3 इट इज़ माइनस 3.3. ओके, वैसे ही 5 माइनस 5.3 that is 0.3 which is in minus. Then 8 minus 5.3 it is 2.7. So I got the deviations. Now deviation का square then multiplied by probability. So 3.3 minus उसका square 10.89. ओके, और इसका probability देखो कितना है, probability 0.2. ओके, सो मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके लिया 2.178. आफ्टर दैट 0.3 विच इज़ इन माइनस, उसका स्क्वायर 0.09. उसका प्रोबेबिलिटी है 0.5 दैट इज़ 0.045. 2.7 का स्क्वायर 7.29. इसका प्रोबेबिलिटी है 0.3, सो 2.817. ओके, 2.178 plus 0.045 plus 2.187. So total is variance. टोटल को variance बोलते हैं ना, 4.41. उसको हम लोग ये प्रेस कर देंगे अंडर रूट वाला, सो 2.1. ओके, लेट्स चेक द आंसर ऑफ दिस डी लिमिटेड. डी लिमिटेड का आंसर हम लोग एक बार चेक करके बाद में जी लिमिटेड के पास जा सकते हैं. सी, उन लोग का भी वरायंस 4.41 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.1 आया है. ओके, हम लोग ने इधर परसेंट का मार्क क्यों नहीं डाला है, क्योंकि इधर हम लोग ने रिटर्न के परसेंट यूज़ नहीं किए थे, राइट. अभी वैसे ही सेम टू सेम हम लोग को जी लिमिटेड का करना है, रिटर्न्स फाइंड आउट करना है. ओके, एप्रिसिएशन कितना हुआ, डिविडेंड कितना हुआ. डिविडेंड हम लोग ने अभी देखा दैट इज़ 0.35 पर शेयर. ओके, अभी एप्रिसिएशन देखना है. Closing market price is 29, opening market price is 29, so there is no appreciation. We will get only dividend, so 0 plus 0.35 I am getting only dividend, that is 0.35. okay, after that here if the price will be 31. okay, पहले केस में 29 प्राइस था, अभी कितना हो सकता है 31. ओपनिंग कितना है अपना, ओपनिंग 29, तो कितना मिला 2. एप्रिसिएशन इज 2 प्लस मेरा जो डिविडेंड है उतना ही मिलेगा, सो 2.35. एंड इन केस ऑफ लास्ट प्रोबेबिलिटी, ओके, लास्ट प्रोबेबिलिटी के लिए सी प्राइस इज 33, क्लोजिंग वाला. ओपनिंग वाला तो फिक्स ही है 29 ही है, सो मेरे को एप्रिसिएशन कितना मिलेगा 4. सो एप्रिसिएशन विल बी 4 प्लस डिविडेंड इज 0.35, so total is 4.35. okay, probabilities are given in the question 0.2, 0.5, 0.3. just multiply करो, return multiplied by probability. 0.35 multiplied by 0.2 it is 0.07. 2.35 multiplied by 0.5 it is 1.175. 4.35 multiplied by 0.3 it is 1.305. okay, just take a total, so we'll get the expected return 0.07 plus 1.175 plus 1.305. we are getting 2.55 as the expected return. okay, सेम स्टेप कर रहे हैं, जो उधर किया वही कर रहा है. अभी डेविएशन फाइंड आउट करना है, सो रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. सो माय फर्स्ट रिटर्न इज 0.35 माइनस माय एक्सपेक्टेशन वाज 2.55, सो माइनस 2.2. ओके, अभी नेक्स्ट 2.35 माइनस 2.55 माइनस 0.2. now 4.35 minus 2.55 we are getting 1.8. okay, 1.8. स्क्वायर करना है 2.2 का स्क्वायर माइनस वाले का 4.84, 0.2 का माइनस वाले का स्क्वायर दैट इज 0.04. 1.8 का नॉर्मल है वो, उसका स्क्वायर 3.24. ओके, अभी ये डेविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करना है, सो 4.84 मल्टीप्लाइड बाय माई प्रोबेबिलिटी इज 0.2 दैट इज 0.968. 0.0
4 multiplied by 0.5 is my probability, so 0.02, 3.24 और उसका probability है 0.3, so 0.972. Okay, let's take the total. 0.968 plus 0.02 plus 0.972, we are getting 1.96. so total को हम लोग वैरेंस बोलते हैं, so उसको बाहर निकालेंगे. फाइनल अपना जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ जी लिमिटेड, उसका आंसर आया है 1.4. 1.4. ओके, 1.4. अभी चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं. ओके, सी वरेंस उन लोग का भी 1.96 आया और उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 1.4 आया है. ओके, 1.4. अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें सब कुछ आंसर सही आया है, सिर्फ इसका प्रॉब्लम है, इसमें मेरे को पता नहीं चल रहा है वेट किधर से लाया. मे बी वो मिस्टेक भी हो सकता है. अगर किसी को करेक्ट आंसर पता है तो ठीक है, वरना हम लोग ने जो किया है वही करेक्ट है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में मिस्टेक्स तो होता रहता है, हम लोग को पता है. लेकिन अगर किसी को पता है कि ये सही आंसर है, सो प्लीज़ कमेंट कर दो ताकि बाकी लोग को भी समझेगा और मुझे भी समझेगा. ओके, सो हियर we have completed illustration number 12. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.